फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आइस। मेरा नाम है डॉली और हम बात कर रहे हैं आज हिंदुकुश की। जो हिंदुकुश ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो आज हम पूरी बात उसी पे करेंगे कि हिंदुकुश, भारत के करोड़ों लोग खतरे में है क्योंकि हिंदुकुश पिघल रहा है। बात की जाए हिंदुकुश, हमारे एंशिएंट टाइम से हिंदुकुश का जो है बहुत ज्यादा महत्व रहा है। बहुत सारे जो आक्रमणकारी हैं जैसे अलेक्जेंडर हो गया, सिकंदर हो गया, ये सब हिंदुकुश से होते हुए ही आए हैं। जो हिंदुकुश का रीजन है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ है। जो हमारे पीओ के कश्मीर, पीओ के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो भी हिंदुकुश रेंज के अंदर ही आता है। तो एक रिपोर्ट आई है, ये हम देखो, पहले तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप इनको देख लीजिए। ये फोन नंबर से आप इन पे कॉल कर लीजिए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। एक स्टडी आई है, रिसेंटली स्टडी आई है, उसने बोला रिसेंट साइंटिफिक स्टडी वॉन दैट द हिंदुकुश हिमालय विटल वाटर सोर्सेज फॉर नियरली 2 बिलियन पीपल। जो हिंदुकुश है वो वाटर रिसोर्सेज है और 2 बिलियन लोगों को वाटर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, could lose up 75% of its glacier ice end of the century। बात की जाती है कि वो 70% अपनी जो आइस है ग्लेशियर्स की वो लॉस कर जाएगा कब? सेंचुरी के एंड में, अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ता है। और यहीं पे बात करें कि अगर टेम्परेचर हमने 1.5 डिग्री तक भी रख लिया या रोक लिया तब भी आइस जो मेल्टिंग है वो बढ़ती रहेगी। दिस अलार्मिंग forecast highlight the region vulnerability and profound implication for water security throughout Asia. The finding underscore the urgent need for more decisive climate action. According to the study, it continues managed to limit global warming to 1.5 degrees centigrade in line with the Paris Agreement. Approximately 40 to 45% of glacier ice in the Himalayas and the Caucasus could be preserved on a global scale. This would result in retaining about 54% of existing land mass, significantly more than the 24% of projected to remain if the planet continue on its current path towards 2.7 degrees centigrade of warming by the end of the century. अब significant of glaciers की बात की जाए तो क्या है कि glacier region that are essential to human communities, क्या क्या, such as European Alps, North America Rockies and Iceland are particularly threatened by the climate change। और बात करते हैं अगर कि 2 degree centigrade rise in global temperature, these area could be lost nearly all their glacier, retaining only 10 to 50% of their 2020 level की बात करें। Scandinavia faces an even more alarming scenario with forecast predicting a total loss of glacier ice at this level of warming। देखो अभी अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज में क्या है कि जहां बारिश होनी है वहां बारिश नहीं हो रही है, जहां बारिश की जरूरत नहीं है वहां बारिश हो रही है। जैसे कि राजस्थान में बारिश हो रही है ना, सऊदी अरेबिया में बारिश हो रही है। और बात की जाए कि जहां बारिश नहीं होनी है वहां हो रही है और जहां होनी है वहां नहीं हो रही है ना। द स्टडी इज रिलीज अलाइन विद द inaugural United Nations Conference on Glacier currently taking place in Doshambe, Tajikistan, where representatives from the 50 countries are gathering to tackle the growing crisis. At the conference, Asian Development Bank के President Yingming Yan stressed the gravity of the situation, stating melting glacier threaten lives on an unprecedented scale, including the livelihood of more than 2 billion people in Asia, transitioning to the clean energy to reduce planet warming emissions remain the most effective strategy to slow glacier melt की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, रिसर्चर एम्प्लॉय 8 ग्लेशियर मॉडल टू इवेल्यूट द फ्यूचर over 200,000 glaciers worldwide under different global warming. अब their analysis revealed that glacier mass will continue to decline rapidly for several decades even if global temperature stabilize, resulting in long lasting effect that could persist for centuries. अब देखो ये है कि हिंदुकुश हिमालय could lose 75% of glacier over a billion people at risk। जब ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे तो हिंदुकुश क्या है, 2/3 वाटर यहाँ पे क्या है, आइस लूज कर सकता है 2100 तक, यहाँ पे 2/3 2100 तक। ठीक है, 2/3 आइस जो है यहाँ पे लूज कर सकता है। बात की जाए कि जो थर्ड लार्जेस्ट फ्रोजन वाटर एरिया है, ये थर्ड लार्जेस्ट फ्रोजन वाटर एरिया।
वाटर एरिया है, ठीक है, पानी यहाँ पे फ्रोजन फॉर्म में। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये जो पूरा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, ये सारा हिंदू कोस्ट का एरिया है। अब हिंदू कोस्ट रीजन लूजिंग 75, अब कौन कौन आता है इसके अंदर? इस 5 कहाँ का मैंने अभी बताया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। Contain the largest volume of ice and snow outside the polar region, often called the third pole. Feel 10 major rivers like Ganga, Indus, Brahmaputra, supporting over 2 billion people. अब causes of glacial loss के cause क्या क्या है? Global warming, rising temperature, melting ice faster than it can be replenished, ठीक है। Pollution and black carbon, जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो कर ली है, और वहां पे अब कार्बन क्या है कि अगर वो कम भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो गए। अब डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री मानता है, तो वहां पे उसकी बहुत इंडस्ट्री है, अच्छे से ग्रो हो गई है, लेकिन भारत जैसे देश हो गए, और भी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको तो अभी जरूरत है ना इंडस्ट्री ग्रो करने की, कोल की अभी उनको तो जरूरत है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो ऑलरेडी डेवलप हो ही गई हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है उनको अभी जरूरत है। तो कार्बन उत्सर्जन तो होगा ही होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको थोड़ा सा कम करना है। तो इस तरह के जो यहाँ पे चीजें हैं करनी पड़ेंगी, किसके लिए? एनवायरमेंट को सही रखने के लिए। पोल्यूशन एंड ब्लैक कार्बन शूट फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स सेटल ऑन आइस एब्जॉर्बिंग हीट, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड लैंड यूज चेंज, ओवर टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्रेजाइल जोन। तो ये पूरा हिंदू कोस्ट का मामला था कि हिंदू कोस्ट में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। अगर 75% आइस अगर मेल्ट हो जाती है तो टेम्परेचर जब 2 डिग्री के करीब राइज हो जाता है तो कम से कम 2 बिलियन जो लोग हैं वो यहाँ इफेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह आप हमारे करंट के टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।